Good morning all the students of class 8th. This is Dinesh and again I welcome to all in my YouTube channel The Exam Toppers. In the previous video we had completed 2 chapters of Honeydew Books class 8th, and today we are going to start chapter number 3, The Selfish Giant, and this chapter has been taken from the Honeydew book of the class 8th CBSE NCERT. Yes, this chapter, name of the chapter is Selfish Giant, and this chapter is written by Oscar Wilde. First of all, we will discuss some about the writer. Yes, my dear students, we will start about the writer. Author Oscar Wilde is an author, playwright and poet. Oscar Wilde was a popular literary figure in late Victorian England. After graduating from Oxford University, he lectured as a poet. Yes, he completed his graduation from Oxford University and then he lectured as a poet, art critic, and leading a prominent of the principles of aestheticism. In 1891, he published The Picture of Dorian Gray, his only novel, which was panned as immoral by Victorian critics, but is now considered one of his most notable works as a dramatist. Many of Wilde's plays were well received, including his satirical comedies Lady Winterstone Fan 1892, and like this he wrote many stories, and the story which we are going to start, it's very interesting. The Selfish Giant. Yes, my dear students, you know very well selfish का मतलब क्या होता है. What is the meaning of selfish? जो सिर्फ अपनों के बारे में सोचता है या अपने सेल्फ के बारे में सोचता है. Giant it means a huge person. Huge जो इतना बड़ा होता है, विशाल काय होता है, बहुत बड़ा होता है, राक्षस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. तो जो स्टोरी है इसके अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है giant, and a little boy is another character, and whatever happening in this chapter we will know during the chapter. Yes, let's start. First all of points. First point and first part, the giant's garden was beautiful. Yes, in this chapter giant had garden, and which one is very beautiful, and children love to play in it. It means in garden, and this point is also we will discuss in the chapter. Next point is the giant who was selfish. Giant जो यहाँ पर प्रोटैगोनिस्ट है हमारा, वो क्या है? He was selfish. Built a high wall around his lovely garden, and he built a high wall around the garden. Yes, you know very well, एक garden है जिसके आसपास वो क्या करता है, अपने garden के आसपास wall बना देता है. And next point is children didn't enter the garden thereafter, nor did spring and summer, till the giant experienced a change of heart. Yes, after building the wall around the garden by selfish giant, after that thereafter children didn't enter in the garden, and as well as spring. Spring, you know very well what is the meaning of spring. Spring is the name of season, जिसको हम बोलते हैं ना बसंत. जो बसंत का मौसम होता है वो हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हम यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं. तो ना तो स्प्रिंग जाती है उसके अंदर और ना ही बच्चे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल. एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर में, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल, दे इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रन. The children used to go and play in the giant's garden. Yes, every afternoon after completing the school, all the children went into the garden of the selfish giant and play there. Next, it was large lovely garden with soft green grass. The whole garden was green, and in that garden there was a green and soft grass. Yes,
Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. Yes, in this paragraph अब हमारी बात हो गई है कि उसके अंदर क्या है, ग्रास है, और उस ग्रास के ऊपर क्या हुआ है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स आए हुए हैं, जस्ट एंड दोज फ्लावर्स आर लुकिंग जस्ट लाइक अ स्टार्स, एंड स्प्रिंग टाइम delicate 12 blossoms and different kinds of flowers were there like pink, pearl and different kinds of flowers, and in the autumn bore rich fruit. Autumn again this is the name of season, और इसमें क्या होता है, अलग अलग फ्रूट्स आते हैं. रिच फ्रूट, रिच का मतलब यहाँ पर कोई अमीर की बात नहीं कर रहे हैं. रिच इट मीन्स लॉट अमाउंट, या फिर एक यूज मात्रा में, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में. सो द बर्ड्स सेट on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. Yes, in that garden birds came and sang a very beautiful song, and after listening or for listening the song, children stop their game and listen very careful or enjoy the music of the birds. And they told each other how happy we are here. They cried to each other. और बोलते हैं, वो बताते हैं एक दूसरे को कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं. How happy we are here. Where? In the giant's garden. One day the giant came back. बट ये तो अभी तक प्रोसेस चल रही थी कि बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद में वहाँ पर खेलते हैं. They used to play in that garden. But one day what happened? One day the giant came back. giant एक दिन वापस आ जाता है. मतलब क्या हुआ कि giant अभी तक वहाँ पर नहीं था. He was not in that garden. That's why all the children played in the garden after completing their school. But now giant had been come. He had been to visit his friend the Cornish Ors. इसका मतलब यहाँ पर दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, अ जाइंट ऑफ कॉर्नवॉल इन द यूके. यस, उसका फ्रेंड, जैसे कि अपने फ्रेंड. आप स्टूडेंट हो तो आपके फ्रेंड कौन होंगे? स्टूडेंट होंगे. मैं टीचर हूँ तो मेरे फ्रेंड अधिकतर कौन से मिलेंगे? इस फील्ड में मिलेंगे. अब जो जाइंट है उसके फ्रेंड कौन होंगे? सीधी सी बात, अपन थोड़ी होंगे, जाइंट ही होंगे वो भी. यस, यू मस्ट रिमेंबर इट. देन व्हाट हैपेंड? व्हेन ही अराइव्ड, हाँ, एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. जो सेल्फिश जाइंट अपने फ्रेंड के पास कितने साल तक रहा था? फॉर द 7 years. व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. व्हेन ही केम टू हिज गार्डन एंड ही सॉ दैट ऑल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन हिज गार्डन, देन ही क्राइड, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ही क्राइड इन अ वेरी गर्व वॉइस. मतलब बहुत बिटर वॉइस में वो चिल्लाता है. एंड द चिल्ड्रन रेन अवे. आफ्टर लिसनिंग द वॉइस ऑफ द जाइंट ऑल द चिल्ड्रन रेन अवे फ्रॉम हियर. देन नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज. दीज आर द मीनिंग्स फॉर डिफिकल्ट मीनिंग. यस, लुक एट द पिक्चर. दिस इज द जाइंट. कहाँ जाएंगे? यहाँ से आएंगे. ये जाइंट है, दिख रहा होगा बड़ा, और ये छोटे 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 मासूम बच्चे हैं आप लोगों की तरह, है ना. सो लेट्स कंटिन्यू. पिक्चर में ज़्यादा ध्यान नहीं देना. माई गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जाइंट. जाइंट अगर जोर से चिल्लाता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? दिस इज माई गार्डन एंड माई गार्डन विल बी माई गार्डन. एनीवन कैन अंडरस्टैंड. सब समझ गए ना? सबको चिल्ला कर भगाता है वहाँ से. एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. And he told all the children that I will not allow anyone in the garden to play. So he built a high wall all around it and put up a notice board. That's why क्या करता है वो? दीवार के चारों गार्डन के चारों तरफ उसने एक वॉल बना दी है, और वॉल के ऊपर क्या लिखा है? ये लिख दिया उसने, नोटिस बोर्ड पर लिख दिया है. जैसे हम गेट पे लिखते हैं ना, हर घर के सामने लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, दिखा रहता है बहुत सारी जगह. तो
तो वहाँ पर उसने लिख दिया ट्रस्ट पर्सन्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब कि बिना अनुमति के अगर अंदर आओगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा क्यों किया उसने? बिकॉज ही वॉज वेरी सेल्फिश। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले। अब बेचारे गरीब बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, दे यूज फॉर चिल्ड्रन। बच्चे क्या कर रहे हैं? बेचारे रोड पे खेलते हैं। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। लेकिन रोड कैसा था? बहुत गंदा था, बहुत बेकार था, जिसपे बहुत कंकड़ पत्थर थे, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना रोड के साइड में, वो वाले रोड पे पड़े हुए थे। एंड दे डिडेंट लाइक इट, और वो रोड गार्डन जैसा नहीं था। यस, एक आप ही इसमें सोच सकते हो कि अगर गार्डन में आपको खेलने के लिए मिल रहा है, लेकिन गार्डन से कोई आकर आपको भगा दे और दीवार बना दे, तो आप कहाँ खेलोगे? गार्डन के बाहर रोड पे, जो अच्छा नहीं होगा। सॉरी। They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. And after completing school, they wander around the garden or around the wall, and how they speak to each other, how happy we are there. There it means inside the garden. The spring came. Yes, now the time of spring. I told you early when we started the chapter. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Yes, जब स्प्रिंग का मौसम आ जाता है, बसंत का टाइम आ जाता है, तो हर जगह क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं। उन पे पेड़ पर बर्ड्स बैठती हैं। बर्ड्स बैठ कर क्या करती है? अपना गाना गाती हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। सिर्फ उसी के अंदर, किसके अंदर? सेल्फिश जाइंट के अंदर अभी तक क्या है? अभी तक विंटर है। देयर वॉज स्टिल विंटर। द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग इन इट। देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। यस, ना तो वहाँ पर ट्रीज के ऊपर क्या हो रहा है? ना तो फ्लावर्स आ रहे हैं, ना उनके ऊपर ब्लॉसम्स आए हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं हैं। दैट्स वाई स्प्रिंग डिडंट कम देयर। Once a beautiful flowers put its head out from the grass. एक बार क्या होता है? छोटा सा फ्लावर ग्रास के अंदर से बाहर निकलता है ना? जैसे ग्रास है, उसके अंदर से छोटा सा फ्लावर्स बाहर आता है, और बाहर आकर वो क्या करता है? वापस अंदर चला जाता है। क्यों? Because but when it saw the notice board, and it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. जब उसने देखा, क्या देखा? कि वहाँ पर उसने नोटिस बोर्ड देखा कि चिल्ड्रन अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो उसने अपने आप को दुख जताया बच्चों के लिए और वापस चला जाता है अंदर। The only people who were pleased were the snow and the frost. और people किसके लिए यूज़ किया हमने? people यहाँ पर इंसानों के लिए यूज़ नहीं किया हमने। people यहाँ पर यूज़ किया गया है snow and frost। जो frost होता है और जो snow होता है, मतलब बर्फ़ होती है, और जो कोहरा होता है, उसके लिए यूज़ किया गया है। Spring has forgotten this garden. सब जगह स्प्रिंग है, उस गार्डन को भूल चुकी है। They cried, चिल्लाते हैं वो। So we will live there all the year around. और एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो कि पूरे साल क्या करेंगे? हम यहाँ पर रहेंगे। The snow covered up the grass with her great white cloak. Cloak का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? Cloak का मतलब यहाँ पर अपनी जो वॉच होती है, जो दीवार पे घड़ी लगी हुई, वो नहीं है। क्लॉक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स? क्लॉक मतलब कि जो पूरे ऊपर से ढका हुआ है, जो अपन ऊपर पूरा कपड़ा पहन लेते हैं, पूरे ढक जाते हैं, उसके लिए क्लॉक यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि ग्रास को स्नो से पूरी तरह से कवर किया हुआ है। यस, कैसे है वो? फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। सारे ट्रीज कैसे हो गए वहाँ के? वाइट हो गए। वाइट कैसे? क्योंकि सिल्वर कैसी होती है? हमेशा चांदी कैसी होती है? कलरफुल वाइट होती है।
तो सिल्वर यूज़ किया गया मतलब कि वाइट हो गए, वहाँ पर ऐसा नहीं कि चांदी ला के रख दी तुमने, है ना, ऐसा नहीं समझना। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एट ही केम, और वो क्या करते हैं वहाँ पर, वो नॉर्थ साइड की जो हवाएं हैं उसको भी अपने साथ वहाँ पर बुलाते हैं, इनवाइट कर रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ और इस सेल्फिश जायंट के गार्डन में रहते हैं। एंड he was wrapped in furs, he roared all day about the garden and blew the chimney pots down. This is delightful spot, he said. He is used for giant. We must ask hell on a visit. So the hell came. क्या करते हैं वो हेल को वहाँ बुलाते हैं और हेल भी वहाँ पर आ जाती है। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल। कैसल क्या है यहाँ पर, कैसल उसका घर है, कैसल यूज़ करते हैं हम किले के लिए, लेकिन किले जैसा क्या है उसका घर है, किसका, सेल्फिश जाइंट का। एंड दिस कैसल इज ऑल्सो बिल्ट इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन। And then he ran round and round the garden as fast as he could. He was dressed in grey and his breath was like ice. अब जाइंट क्या करता है, ग्रे ड्रेस पहनता है, ग्रे कलर की ड्रेस में, मेरे जैसी नहीं, चाहे ग्रीन कलर है इसका, मैं जाइंट नहीं हूँ, है ना, ग्रे कपड़े पहनता है वो, और गार्डन के अंदर राउंड एंड राउंड लगाता है, और उसके ब्रीथ भी, सांसें भी कैसी हो गई है, एक आइस की तरह, मतलब कि वो सोच रहा है, he was thinking about the spring but in his garden there was no spring। और वो डिसाइड कर रहा है, वहां पे सोच रहा है, क्या सोच रहा है वो, I can't understand why the spring is so late in coming। वो सोच रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, I am not able to understand why spring is so late to come in my garden। And the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden। अब बेचारा विंडो के पास बैठ जाता है, और विंडो के पास से बैठकर क्या कर रहा है वो, अपने गार्डन के बाहर देख रहा है। एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द स्प्रिंग। आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर, और उसको पूरी उम्मीद है कि क्या होगा, मौसम में कुछ चेंज जरूर होगा, लेकिन कब होगा अब ये तो स्प्रिंग जाने। देन बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, लेकिन यहाँ वहाँ उस गार्डन के अंदर ना तो स्प्रिंग आती है और ना ही समर आती है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, और ऑटम के सीज़न में भी क्या होता है, हर गार्डन के अंदर बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं, जैसे आम के पेड़ पे आम लगे हुए हैं, जाम लगे हुए हैं, मतलब कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं सब आ जाते हैं, लेकिन सेल्फिश जाइंट के गार्डन में कुछ नहीं आता है। बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, मतलब कि उसने, ऑटम ने कुछ नहीं दिया, बिकॉज ही इज़ टू सेल्फिश, वो कैसा है, बहुत खुदगर्ज है। she said she is used for autumn, yes। So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees। तो इसलिए उस गार्डन में हमेशा क्या रहेगी, विंटर रहेगी, है ना, फ्रॉस्ट होगा, स्नो होगा, हेल होगा, और वो सब ट्री के ऊपर क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। डांस मतलब वहाँ पर ही आ रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग नहीं आई। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music। One day giant listened a very beautiful music, a lovely music sorry, it sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by, and the sound of that music was very very sweet। So giant thought that they were musicians passing here of the king। It was really only a little linnet, you know, एक ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड होती है जो यूरोप में ही पाई जाती है, एक बर्ड है, मतलब सीधे समझ लो एक बर्ड है जो गाना गाती है।
सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो बट इट वॉज सो लॉन्ग। बट वो क्या थी, बट बहुत दूर थी। किससे दूर थी, जाइंट से। He had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be most beautiful music in the world. And the music, which music? That music which was singing by that little linnet, little bird. And north wished. Then the hell stopped dancing over his head. तो उस म्यूज़िक को सुनकर क्या होता है, वहाँ पर हेल मतलब कि जो सफ़ेद सफ़ेद गोले गिरते हैं, या फिर जो वाइट कलर जो जिसके ऊपर सुबह जो होता है ना, कोहरा टाइप होता है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, बट स्पेशली इज़ यूज्ड फॉर हेल। जो बड़े बड़े वो गिरते हैं ना बारिश में, उसके लिए कर देते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमेशा हम रहेंगे यहाँ पर। एंड नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और रोरिंग का मतलब यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलना, रोर कर रही मतलब कि रोवर इज़ यूज्ड फॉर जो साउंड होता है, जो शेर की आवाज़ होती है, उसके लिए हम रोवर वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि शेर की क्या होती है, एक दहाड़ होती है, तो बहुत तेज़ होती है वो, तो इसीलिए यहाँ पर रोवर वर्ड यूज़ हमने किया है। किसके लिए, बहुत तेज़ हवा के लिए। I believe the spring has come at last. At last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, लिनेट की आवाज़ आती हैं, तो वहाँ से क्या होता है, जाइंट अपने पैर से बेड से, उसके बिस्तर जहाँ पर बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, वट एवर ही वॉज डूइंग, वहाँ से जंप लगाता है, वो जंप लगा नीचे कूदता है, और वो बाहर देखता है कि मौसम आया क्या। Yes, my dear student, this is the first part, and first part is over, and second part we will discuss in the next video, जो आपको जस्ट इसके बाद में मिल जाएगा। और कभी आपको नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास डेली जब भी वीडियो डलेंगे और नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। सो इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।